Vision is everything. If you don't know where are you going, you will probably end up somewhere else. या मैं यूँ कहूँ कि सपने तभी तो सच होते हैं ना जब हम सपने देखना शुरू करते हैं. So, taking up with these motivational quotes, join me in welcoming four innovative young minds on our talk show. Vision is being able to see the sun before it shines. So let me start by introducing them. Firstly, coming up, Bhavya Vishnoi ji from Congress Party, then Aparna Yadav from Samajwadi Party, Nusrat Jahan and Mimi Chakrabarti from Trinamool Congress Party. All of you are welcome over here. So now, if we move forward, my first question is from Bhavya Vishnoi ji. That in one of your statement, you said that pollution, global warming, climatic change are frequently topics about environment. But according to you, you feel that e-waste material management is also a very concerned topic. So please enlighten us on that. See, if we talk about Japan, obviously it's a technological advanced country with electronic waste as a major issue. And literally, Japan was the first country to make medals for Olympics from recycled electronic devices such as smartphones and other components too. So we should learn from such countries. जब कोई एंटरप्रेन्योर अपनी इंडस्ट्री सेट करता है, क्या वो पोल्यूशन देखता है, एनवायरनमेंट देखता है? वो सिर्फ प्रॉफिट्स देखता है. एंड एक्चुअली लिंकिंग प्रॉफिट्स विद वेस्ट मटेरियल विल हेल्प अस टू अचीव ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. Why not to see waste material like a commodity जिसको हम एक प्रोडक्ट की तरह बाय सेल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, just like other forms of energy. It's just that we need to shift our tendency from burning or landfilling the waste to recycling and energy creation. You know what? We can make this trash work for a nation. Obviously, converting garbage into sustainable energy requires support from citizens and too, as they need to segregate their waste into different kinds of bins like red, blue, black, etc. Around 42% of waste, including newspapers, plastics, batteries, metals, and other electronics, can be easily recycled. Remaining 52% scrap metals, agriculture waste, and industrial waste can be used for waste to energy program and can be converted into electricity. ऐसे में सिर्फ 1% ही वेस्ट रह जाएगा जो लैंडफिल्स में जाएगा, जो हमारी कंट्री में यूजुअली 79% के अराउंड है. और वो दिन भी जल्द आएगा जब हम इंपोर्ट करेंगे गार्बेज को एंड वी कैन एक्चुअली चार्ज देम फॉर कन्वर्टिंग देयर ट्रैश इनटू सस्टेनेबल एनर्जी. दैट इज व्हाई मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लेट्स मेक ट्रैश वर्क फॉर अ नेशन व्हिच विल बेनिफिट आवर एनवायरनमेंट एज वेल एज आवर इकोनॉमी. जी बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लेने का सोचा है. और अब अगर मैं बात करूँ सोलर एनर्जी की, तो इट इज़ टुडेज़ रिसोर्स फॉर ब्राइटर फ्यूचर. इट इज़ पावरफुल रिसोर्स, इन्फिनाइट रिसोर्स एंड ऑल्सो फ्री टू यूज़. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसे यूज़ ना करके कन्वेंशनल रिसोर्सेज को डिप्लीट करते ही जा रहे हैं. तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे है मिमी चक्रवर्ती जी कि आप इसके लिए क्या करना चाहेंगी, क्या स्टेप्स लेना चाहेंगी, और अगर ऐसे ही चलते रहा तो क्या ये फ्यूल्स ख़त्म नहीं होंगी? वेरी करेक्टली सेड तनुजा जी. अभी के हालात देखें तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू टेक एक्शन ऑन दिस. Fossil fuels are decreasing and it is very necessary for our country to have rapid transition to develop technologies to achieve sustainable growth with lower emission. Renewable energy technology significantly हमारे electricity demand को पूरा करेगी and it will reduce emission also. Solarizing Indian Master Plan is designed and will start working from 2030. The target is to install solar power panels and power plants in every corner of country to provide cleaner fuel options and decrease fossil fuel consumption. India will thus become first country to use solar power 100% for all needs by 2040. ठीक है. आपने सोलर और विंड एनर्जी की यूटिलाइज़ के लिए पॉलिसीज़ लाने की बात की, लेकिन अगर मैं बात करूँ बायोफ्यूल्स के बारे में, तो वो भी काफ़ी बढ़िया सोर्स है विद 0% एमिशन लेवल के साथ. उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, हम और भी पॉलिसीज लाएंगे इन फ्यूचर जो कि ना सिर्फ सोलर एंड विंड एनर्जी पे होगी, बल्कि वी विल बी working on biofuels which has 0% emission and will be making India zero fossil fuel usage country by 2050. जी मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ. साथ में मैं एक और प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगी. इसी अवसर पे ग्रीन इंडस्ट्री सुपर प्रोग्राम इज़ आर एम्बिशियस प्रोग्राम. Indian government believe that our scientists will be able to use cleaner fuel and in all our industries.
Also, our Space Research Super Lab is expected to make a breakthrough in fusion reaction and utilizing the energy for many of our basic needs. Our scientists will achieve mastery in 2040, and then India will be self-dependent on all energy needs and setting an example to make cleaner and greener world. जी जी बिल्कुल। और हमें तो ऐसे इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज़ की ज़रूरत भी है ताकि हम 2050 तक इस टारगेट को अचीव कर लें। लेकिन अब हम बात करेंगे एक और बड़े मुद्दे पर, जो है बढ़ते प्लास्टिक यूज़ के। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी नुसरत जहाँ जी आपसे। पॉलिसीज तो हमने बनाई हैं और इम्प्लीमेंट भी की है, पर वो उनका इम्प्लीमेंटेशन इतना सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि जनता का सपोर्ट नहीं मिला। सरकार ने मना कर दिया है कि प्लास्टिक बैग यूज नहीं करने हैं, पर फिर भी लोग दुकानों में जाके दुकानदारों से प्लास्टिक बैग मांगते हैं। ये चीज तो गलत है ना। अगर ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो जाती तो आज ये प्लास्टिक का इतना बड़ा मुद्दा तो होता नहीं, सॉल्व हो जाता। तो ये एक तरफा लड़ाई नहीं है, इधर गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को साथ में आकर लड़ना होगा, तभी ये इश्यू सॉर्ट आउट होगा, नहीं तो ये मुद्दा आगे भी बना रहेगा। इंटरनेशनल एजेंसी भी बोलती है कि अगर प्लास्टिक की प्रोडक्शन ऐसी बढ़ती गई तो अगले 20 सालों में 540 मिलियन मेट्रिक टन तक ये प्लास्टिक पहुंच जाएगा। मतलब 2040 तक इतना प्लास्टिक हो जाएगा हमारे पास। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए हम कदम भी उठाएंगे, जैसे प्लास्टिक बैग की प्रोडक्शन को हम मिनिमाइज कर देंगे, उनकी यूसेज को हम मिनिमाइज कर देंगे और जूट बैग की जितना हो सके उनकी प्रोडक्शन बढ़ा देंगे और जनता के लिए हम इसे कन्वीनियंट भी करवाएंगे। जी बिल्कुल, ये ठीक है। लेकिन इंडिया में 2015 में प्लास्टिक रोड का भी इनिशिएटिव लिया गया था। तो आपके हिसाब से ये कैसा इनिशिएटिव है और उसको कितना आगे ले जाना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक हमने 33,700 किलोमीटर ऑफ प्लास्टिक रोडवेज बना ली हैं। दैट मीन्स एवरी 1 किलोमीटर यूजेस 1 मिलियन प्लास्टिक बैग्स। तो आप लोग देख ही सकते हैं ये कितना यूजफुल है। हम ऐसी और भी पॉलिसीज लेकर आएंगे, और भी टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे, और हम मेजरली अब इन पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेंगे, क्योंकि पॉलिसी सरकार बना देती है पर वही है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, जैसे मैंने पहले भी बोला। तो अब अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम फाइन्स भी लगाएंगे पब्लिक पे जो रूल ब्रेक करेंगे। ओके। और अब अगर मैं बात करूं global sea level rise की, which start at the 20th century, the resources says that sea level will rise around Lakshadweep Island in the range of 0.4 mm to 0.9 mm per year, and this study shows that all these islands are vulnerable to this impact. और अब अगर ये इतनी बड़ी बात है जो आगे चल के काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है, तो इस रिगार्ड में मैं अपर्णा यादव जी आपसे जानना चाहूँगी कि आपके क्या विचार हैं और आप क्या स्टेप लेना चाहते हैं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो काफ़ी बड़ा इशू है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपर कोस्टल प्रोटेक्शन मेजर की प्रैक्टिस करें, जैसे लंदन में है, ना कि नीदरलैंड की तरह जो ऑलरेडी पानी के नीचे जाता जा रहा है। फ्यूचर में होने वाले ऐसे इम्पैक्ट्स के लिए ऑलरेडी तैयार रहना पड़ेगा और उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हमें डायरेक्शनल नेचर ऑफ वेव एनर्जी पर ध्यान देंगे, आइलैंड्स पर पोर्टेबल वाटर और सैनिटेशन जैसी चीज़ों की प्रॉपर सुविधा करवाएंगे। एक आइलैंड पर कम से कम 4 फ्लड प्लेन बनवाएंगे। अडेप्टिव कोस्टल प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट करवाएंगे जो आइलैंड पर हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज का मेजर ध्यान रखेगा। न्यू बैरियर स्कीम निकालेंगे जो आइलैंडर्स को इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देगा डैमेज के बाद बिना किसी रुकावट के। जी जी, तो आप कुछ ऐसा इफेक्टिव स्कीम या पॉलिसी लाएंगी? मैसिव बैरियर स्कीम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो बढ़ते सी लेवल के पानी का परमानेंटली कोस्ट से ब्लॉक कर देगा और 2050 तक ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये आइलैंड और आइलैंडर्स को बचाने में बहुत मदद करेगा। जी बिल्कुल। और किसी ने खूब ही कहा है कि आज का संकल्प कल की सिद्धि होगी, और हमारी आने वाली कैन डू पीढ़ी कुछ भी करके दिखा सकती है। जैसा कि आज हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ यंग नेताज ने हमें इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज से साझा कराया जो इंडिया को 2050 तक आत्मनिर्भर और सुपर पावर बनाने की ओर ले जाएगी। तो आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आशा करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो।